السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلم اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز آف اگست 2021 کی 2021 کے جو انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز ہیں ان کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. سو لیٹس جسٹ بگن. Who has become the first transgender to compete in Olympics? Grezia Polai, Laurel Hubbard, Apriani Rahayo یا none of these؟ کون سا فرسٹ پرسن ہے جو کہ فرسٹ ٹرانسجینڈر ہے جس نے اولمپکس میں حصہ لیا ہے؟ تو نیوزی لینڈ کے ویٹ لفٹر ہیں لورل ہوبرڈ. شی ہیز بیکم دا فرسٹ ٹرانسجینڈر وومین ٹو کمپیٹ ان دا اولمپکس. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر نے اولمپکس میں کمپیٹ کیا ہے. Which country has won most medals and most gold medals? Japan, China, America اور France؟ سمر اولمپکس آفیشلی اینڈ ہوئے 8 اگست 2021 کو 113 میڈلز کے ساتھ امریکہ سب سے ٹاپ پہ رہا اور 39 گولڈ میڈلز امریکہ نے حاصل کیے. اس کے بعد اولمپک فلیگ جو ہے وہ پیرس کے میئر کو دے دیا گیا جن کا نام تھا اینے ہڈالگو، تاکہ وہ 2024 کو جو پیرس میں گیمز ہونی ہیں، اولمپکس گیمز ہونی ہیں، ان میں ان کی تیاری کے لیے وہ فلیگ جو ہے اولمپک فلیگ وہ پیرس کے میئر کو ہینڈ اوور کر دیا گیا. پاکستان نے اس پورے اولمپکس میں کوئی میڈل نہیں جیتا. ٹاپ 10 پرفارمرز جو ٹوٹل میڈل کاؤنٹ کے لحاظ سے رہے وہ کچھ اس طرح ہیں. امریکہ نے 113 میڈل لیے جس میں 39 گولڈ میڈلز تھے. چائنا نے 88 میڈلز حاصل کیے جس میں 38 گولڈ میڈلز تھے. ریپبلک آف چائنا نے 71 میڈلز حاصل کیے جن میں سے 20 گولڈ تھے. برٹین نے یعنی انگلینڈ نے 65 میڈلز حاصل کیے جن میں سے 22 گولڈ تھے. باقی ڈیٹیل آپ خود اپنے طور پر دیکھ لیں. When did Kabul fall to the hands of Taliban? سکوت کابل کب ہوا on the hands of Taliban؟ 11 اگست، 13 اگست، 15 اگست یا 17 اگست 2021؟ تو طالبان نے 15 اگست 2021 کو کابل پر قبضہ کیا ایک ملٹری اوفینسو ایکشن میں جو کہ افغان گورنمنٹ کے خلاف تھا، اور یہ جو ملٹری اوفینسو ایکشن تھا یہ مئی 2021 سے چل رہا تھا اور اس کے بعد یہ اپنے اینڈ تک پہنچا، اختتام کو پہنچا 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا. گورنمنٹ آفیشلز فلی افغانستان، جو گورنمنٹ کے آفیشلز تھے وہ بھاگ گئے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ اشرف غنی. افیکٹو کولیپس آف اسلامک ریپبلک آف افغانستان، جس کا سقوط ہوا وہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان تھا، اور جو نئی ریاست بنی جو طالبان کے انڈر بنی اس کا نام ہے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان. Who is the official spokesperson of Taliban in Afghanistan? ذبیح اللہ مجاہد، عبدالغنی برادار، سہیل شاہین یا ہیبت اللہ اخونزادہ؟ ذبیح اللہ مجاہد ان کے افغانستان میں آفیشیل سپوکس پرسن ہیں، جبکہ عبدالغنی برادار جو ہیں یہ وائس امیر ہیں افغانستان کے، جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں افغانستان کے یا طالبان کے، جو سیکنڈ ٹو امیر المؤمنین ہوتا ہے. سہیل شاہین جو ہیں وہ سپوکس پرسن تھے طالبان کے قطر میں. ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہیں یہ تھرڈ امیر المؤمنین ہیں طالبان کے. طالبان کا فرسٹ امیر المؤمنین ملا عمر تھے، اس کے بعد اختر منصور، اور تھرڈ نمبر پہ اب آج کل جو طالبان کے امیر ہیں جو امیر المؤمنین ہیں ان کا نام ہیبت اللہ ہے. اس کے علاوہ طالبان کے ایک اور سپوکس پرسن بھی ہیں یوسف احمدی. تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف سپوکس پرسنز موجود ہیں. ذبیح اللہ مجاہد، سہیل شاہین اور یوسف احمدی یہ تینوں سپوکس پرسنز ہیں. Graubünden University of Applied Sciences in Switzerland announced that they have calculated pi to how many digits? 62.8 trillion, 62.8 million, 62.8 octillion اور 62.8 zillion. پائی کی ویلیو جو ہم نارمل جانتے ہیں وہ 22/7 ہوتی ہے، جو کہ شارٹ فارم میں 3.14 لکھی جاتی ہے. لیکن گروبیوندن یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز سوئٹزرلینڈ جو ہیں انہوں نے پائی کی ویلیو کو کیلکولیٹ کیا ہے 62.8 ٹریلین ڈیجٹس تک، جس میں سے کچھ ڈیجٹس میں نے یہاں پر لکھا 3.142857142886. یہ کچھ ڈیجٹس ہیں.
इतने ही ये डिजिट्स आगे चलते रहते हैं जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे डिजिट्स उन्होंने 62.8 ट्रिलियन डिजिट्स तक काउंट किए हैं। इस पाई की पिक्चर के नीचे भी आप यही डिजिट्स देख सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा है, 3.14 जो मैंने लिखा वो थोड़े कम हैं, और इस यूनिवर्सिटी ने 62.8 ट्रिलियन तक इन डिजिट्स को काउंट किया है। When Taliban declared the formation of Islamic Emirate of Afghanistan 15th August 2021, 17th August 2021, 19th August 2021 और 21st अगस्त 2021, तालिबान ने 19 अगस्त 2021 को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का बाकायदा ऐलान किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का ऐलान नहीं किया कि ये हमारे प्रेसिडेंट होंगे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये हमारे जज होंगे। इस तरह करके उन्होंने पूरी एक हायरार्की का ऐलान नहीं किया, लेकिन वैसे उन्होंने इशारतन कह दिया है कि इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान 19 अगस्त को उन्होंने कहा है कि उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। इससे पहले सितंबर 1996 में इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनी थी और 2001 तक 5 साल तक ये गवर्नमेंट बरकरार रही थी। उस वक्त जो गवर्नमेंट बनी थी तालिबान के कब्जे के तहत, उसको सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तस्लीम किया था। इसके अलावा किसी भी और मुल्क ने उस गवर्नमेंट को, तालिबान की जो गवर्नमेंट थी 1996 से 2001 तक, उसको तस्लीम नहीं किया था। अभी तक भी किसी गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की इस इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया। अगरचे अभी तक पूरी तरह एग्जैक्टली ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ ममालिक ने इशारतन कहा है कि अगर तालिबान ने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी ना की तो हम इस गवर्नमेंट को, तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चाइना, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स ने इशारतन इस बात का इशारा दिया है, ये कहा है, ये इंदिया दिया है कि अगर तालिबान ने ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी ना की तो वो तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यूके और कनाडा ने कहा है कि वो किसी भी सूरत, किसी भी हाल में तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Which country received rains for the first time in recorded history on 19th of August 2021? Egypt, Iceland, Greenland और क्यूबा। तो 19 अगस्त 2021 को ग्रीनलैंड में उनकी जो स्नोई समिट है एक, उस मखसूस जगह पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, मालूम तारीख में पहली दफ़ा बारिश हुई है ग्रीनलैंड में। Who has been appointed as the new Prime Minister of Malaysia? इस्माइल सबरी याकूब, मोहियुद्दीन यासीन, महातिर मोहम्मद या अनवर इब्राहिम। इस्माइल सबरी याकूब को 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया 21 अगस्त 2021 को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम मोहियुद्दीन यासीन था और उनकी गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हुई है, उसने रिजाइन किया है। 2018 के इलेक्शंस में महातिर मोहम्मद ने मेजॉरिटी हासिल की थी और प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2020 में मोहियुद्दीन यासीन जो थे, इन्होंने महातिर मोहम्मद की गवर्नमेंट को गिराया और खुद अपनी गवर्नमेंट बनाई और प्राइम मिनिस्टर बने। 2021 में मोहियुद्दीन यासीन भी अपनी जो सपोर्ट थी वो लूज कर गए और रिजाइन कर दिया, और उसके बाद इस्माइल सबरी याकूब जो हैं वो 9th प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए। Which of the following provinces of Afghanistan is still not under the control of Taliban? तखार, नूरिस्तान, पंजशीर या बदख्शां। पंजशीर जो है वो अभी तक एक सिंगल प्रोविंस है जो कि तालिबान के कंट्रोल में नहीं आ सका। तालिबान ने इसका मुहासरा किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसने सरेंडर नहीं किया। 1996 से 2001 का जो 5 साल रूल था तालिबान का, उसमें भी तालिबान इस सूबे पर कब्जा नहीं कर सके थे। अहमद मसूद एक प्रोमिनेंट लीडर हैं इस वैली के। ये एक पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए इस पर कब्जा करना वैसे भी ज़रा मुश्किल काम है। और यहाँ पर जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, जो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, वो अहमद मसूद हैं, जो इस इलाके की पहचान है, एक बड़ा नाम है। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट थे और अब कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अमरुल्लाह सालेह, वो इस रेजिस्टेंस को, इस जिद्दोजहद को कंट्रोल कर रहे हैं पंजशीर के कैपिटल बाजारिक से। Which country has become second country to recognize cryptocurrency as a legal currency? Thailand, China, Cuba और नॉर्थ कोरिया।
तो क्यूबा सेकंड कंट्री बना है क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल करेंसी एक्सेप्ट करने के लिहाज से। इससे पहले एल साल्वाडोर एक छोटा सा मुल्क है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट किया था। Who has been announced as the acting head or governor of Central Bank of Afghanistan by the Taliban government? Saleh Muhammad, Mullah Baradar, Haji Muhammad Idris or none of these? तो हाजी मोहम्मद इदरीस को तालिबान गवर्नमेंट की जानिब से एक्टिंग हेड या गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान मुकर्रर किया गया है। According to World Bank GDP per capita report 2021, which country is the poorest in the world? दुनिया का सबसे गरीब मुल्क वर्ल्ड बैंक जीडीपी पर कैपिटा इनकम रिपोर्ट के लिहाज से कौन सा है? सूडान, बुरुंडी, मॉरिटानिया और नन ऑफ दीज। तो इनमें जो बुरुंडी है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त फीकस इनकम के लिहाज से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। When is World Photography Day celebrated? 10th of August, 15th of August, 19th of August or 21st of August? 19 अगस्त को हर साल दुनिया में फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है। According to the 10th edition of CAF, Charities Aid Foundation, CAF, which country has topped the World Giving Index 2021? 2021 के वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का मतलब यह है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने चैरिटी के लिहाज से टॉप किया है, देने के लिहाज से। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स मतलब लोगों को तकसीम करने के लिहाज से, लोगों में बांटने के लिहाज से। मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? 2021 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया इज द मोस्ट जेनरस, सबसे फराख दिल कौम है इंडोनेशिया दुनिया में इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। मोर देन 8 in 10 Indonesians have donated money in the past year and Indonesia's rate of volunteering is more than 3 times the global average. 10 में से 8 इंडोनेशियंस ने पिछले एक साल के दौरान कुछ ना कुछ पैसे चैरिटी किए, खैरात किए। इसके अलावा इंडोनेशिया के लोगों का दूसरों की मदद करने का जो रेट है वो बाकी कौमों से ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। 69% इंडोनेशिया का ओवरऑल स्कोर है। इस रैंकिंग में 65% वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी की हेल्प की है। 83% वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पैसे डोनेट किए हैं और 60% वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी एनजीओ में, किसी न किसी सोशल वर्क में अपना नाम लिखवाया है, वो काम किया है। इसी तरह बाकी फिर ये जो हाथ बना हुआ है इसका मतलब है किसी की हेल्प करना, जो नीचे सिक्के बने हुए इसका मतलब किसी को पैसे देना, और उसके नीचे जो टाइम बना हुआ है, स्टॉप वॉच बनी है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना टाइम डोनेट किया है किसी ऐसे सोशल वर्क के काम में। सेकंड नंबर पे कीनिया, थर्ड नंबर पे नाइजीरिया, फोर्थ नंबर पे म्यांमार, फिफ्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सिक्स पे घाना, सेवंथ पे न्यूजीलैंड, एट पे युगांडा, नाइन्थ पे कोसोवो और 10th पे थाईलैंड। ये लोअर स्कोरिंग है। सबसे आखिर वाले ममालिक लैटविया 25%, फ्रांस 25%, 106। इस रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 107 है। पाकिस्तान के ओवरऑल स्कोर 25% बना है। पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तानियों में से 42% लोग जो हैं उन्होंने किसी न किसी की बाई हैंड हेल्प की है। इसके अलावा जो 24% है उन्होंने कुछ न कुछ पैसे डोनेट किए, खैरात किए, जबकि सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी एनजीओ काम में हिस्सा लिया है, अपना टाइम डोनेट किया है। When Taliban celebrated complete independence over Afghanistan, 15 August, 21st August, 26th August और 31st August? तो तालिबान ने 31 अगस्त 2021 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट की है और इसका इजहार उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर दाखिल होते वक्त सेलिब्रेटरी फायर, हवाई फायर करके किया है। 31 अगस्त 2021 वो दिन था जब तमाम के तमाम यूएस ट्रूप्स, यूएस जो आर्मी थी वो सारी की सारी यहाँ से निकल गई थी, और जब 2001 में अमेरिकन आर्मी आई थी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त तालिबान है। अमेरिका की इस 20 साल जंग के दौरान 2500 अमेरिकी फौजी मारे गए और 2,40,000 अफगान जो हैं इस जंग में शहीद हुए,
اور امریکہ کو $2 ٹریلین کا نقصان ہوا. جو پاکستان کی کرنٹ افیئرس کی ویڈیو ہے وہ کل تک انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی. That was all for this video. Thank you so much for watching. اللہ حافظ.